we are proceeding for the second session of today's program, fourth day of the e-learning workshop. So, at the beginning, we have faced some technical problems, but I think it will be over by now. I'm giving you the information that Robijita Madam actually, due to her some problems, she is addressing the session from her place only. So there may be somewhere something technical problems, but please ignore it. We will try to restore everything in time. Okay, now proceeding for the session. The subject of this particular session is Indian traditional theatre, evolution, history and demonstration, dedicated to the 75th anniversary of Indian independence. It's a very relevant and very interesting and very useful subject for our participants. And today our expert is Robijita Gogoi. Robijita Gogoi, I need so much of time to tell about her feathers in her cap. Anyway, Robijita Gogoi is a master degree holder in political science and postgraduate in theatre design and direction from National School of Drama, New Delhi in 1997. Then she has undergone program of orientation program, No Theatre, Kabuki Theatre, Japan. She is the recipient of many awards and recognitions, including prestigious Sangeet Natak Academy Ustad Bismillah Khan Award in 2006. She has directed so many theatre projects of very reputed films all over India, like NSD Repertory Company, New Delhi, Prithvi Theatre Festival, Mumbai, and many more. She was associated with a couple of international theatre projects held all around the globe, like Sri Lanka, Japan, Scotland, Bangladesh, etc. She also associated with so many international conferences on theatre works and attended as theatre teacher at various national and international level workshops and seminars. At present, she is the founder of very premier theatre group, Jisong Theatre in Assam, and designing and directing a very good numbers of plays all around the year and conducting many workshops, even in the pandemic period also she is conducting many workshops and theatre workshops and online programs. So our TISA participants, you are very much lucky to have an expert like Robijita Gogoi amongst you to address the subject of Indian traditional theatre. Let us proceed for the lecture. Thank you. Now I welcome Robijita Gogoi to the table. Thank you. धन्यवाद. CCRT रीजनल सेंटर एंड दिल्ली CCRT. तो मुझे इस सेमिनार के लिए आप लोगों ने मुझे फिर से इस एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में मेरे को फिर आप लोगों ने जोड़ा है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. एंड आज का सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर. एंड ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर ऐसा एक सब्जेक्ट है जो असमीज में एक कहावत है, वो बोलते हैं कि भुरुकाट हाथी भरुआ. ये शंकरदेव के समय पे हुआ था. वो ये आया था कि इतना बड़ा लिटरेचर को शंकरदेव ने बहुत छोटा सा एक बुक में उन्होंने सारी चीजों को कंपाइल करके लाया था. आज मेरे लिए ये जो है ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर, इंडिया इतना बड़ा पैमाना है, इंडिया का पूरा कल्चरल इतना बड़ा डाइवर्सिटी है, केरला से लेकर कश्मीर तक, असम से लेकर बिहार ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, ये पूरा हमारे अलग अलग ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म से भरे हुए हैं. और पूरा इंडियन थिएटर जितना रिच है, मेरा स्टडी के मुताबिक मेरा ऐसा अनुभव है, ऐसा पूरा वर्ल्ड में ही ऐसा बहुत ही कम जगह होगा जिसमें इतना वैरायटी हो. इंडोनेशिया में भी बहुत रिच है, उनका रामायण का कथा गायन, रामायण का अलग अलग फॉर्म को लेके इंडोनेशिया हो व थाईलैंड हो व साउथ ईस्ट एशिया का बहुत ही ये रिच है. लेकिन
इंडिया में इतना कल्चर है, इतना लैंग्वेज है, इतना डाइवर्सिटी है, इसीलिए हम देखेंगे कश्मीर में जो हमारे ये भंड पथे है और वहां से लेके केरला में जाके कुडियाट्टम हो, कथकली हो, कल्लरी पाइट हो, और यहाँ पे आसाम में आके हम उजापाली ले ले, बा मणिपुर के नृत्य संकीर्तन के बारे में ले ले, और वहां पे हम दूसरे साइड में जाए, हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में रामलीला ले लीजिए। सो ये कितना भी थिएटर फॉर्म के, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म के बारे में बात करें वो कम रह जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इस तरह से आप लोगों को आज भी एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म जिस तरह का एक स्टोरी टेलिंग है, इस तरह से ही मैं आप लोगों के सामने भी एक स्टोरी टेलिंग की तरह ही ये लाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना भास्ट है। एक कहानी की तरह मैं आज आप लोगों को ये बोलने के लिए कोशिश करूंगी इंडियन फॉर्म, इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म के बारे में ऐसे ही सुनाने के लिए कोशिश करूंगी, ये भी अपने आप ही कथा गायन शैली में, ताकि आपको लगे कि पूरे भारतवर्ष की अलग अलग कोनों में जिस तरह का फोक फॉर्म है, ट्रेडिशनल फॉर्म है, उसके बारे में आपके साथ रूबरू करवा पाऊं। तो इसलिए जो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसे ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर है उसके पूरा सब्जेक्ट दिया है इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री, और उसके बारे में आज का थोड़ा सा पूरा हिस्ट्री को समाप्त करके रखने के लिए मैंने एक पीपीटी आप लोगों के सामने तैयार करके रखी हूँ, ताकि मुझे भी बोलने के लिए आसान पड़े और आप लोग भी इसकी वेरिएशंस को देख पाए। रिच ट्रेडिशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म्स, ये संस्कृत थिएटर से भी पुरानी ये हमारे ये परंपरा है। ये मानव इतिहास, भारतीय सभ्यता की जब से शुरुआत है, उस समय से लोगों के बीच में एक कला के जरिए से कहानी बोलना, बा कथा गायन के जरिए से बोलना, बा नृत्य के जरिए से बोलना, बा इंस्ट्रूमेंट बजा के एक फॉर्म अपने से तैयार करके बोलने का एक परंपरा बहुत शुरू से ही चालू है। तो इस तरह से हम देखें कि इंडियन थिएटर बा इंडियन सिविलाइजेशन की एकदम बिगिनिंग से ही हमारे पुराने दो एपिक ने हमारे पूरा भारत को प्रभावित करके रखा। उस समय पे तो भारत वैसा था, भारत बोलने से हम जो अभी का भारत को समझते हैं वैसा नहीं है। भारत बोलने से उस समय का इंडोनेशिया, फिलीपाइन, आपका ये पूरा भूटान, इधर से नेपाल, इंडिया, इधर से श्रीलंका, फिर ये मलेशिया, थाईलैंड, ये पूरा एक बृहत्तर भूमि को रिप्रेजेंट करते हैं। भारतीयत्व बोलने से अभी जो हम भारत का मैप देखते हैं उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो बेसिकली कला और जो कहानी और रामायण महाभारत जहां तक इन्फ्लुएंस कर पाते थे वही भारत का एक रूप था। वही भारत का रूप को हम एक्सटेंड करके जाएंगे, हम देखेंगे तिब्बत में है, नेपाल में है, फिर भूटान में है, फिर उधर जाके इंडोनेशिया तक, और इधर से बर्मा, और इधर से हमारे थाईलैंड तक भी ये जो राम का कहानी बोलने का जो एक परंपरा है, ये बहुत खूबसूरत ढंग से अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह, जियोग्राफी बदलने के साथ साथ अलग अलग भूमि के लोगों ने अपना अलग अलग परंपरा को सृष्टि किया। इस हिसाब से देखें तो हमारे दो पुराने एपिक जो महाभारत और रामायण है, उसमें से सबसे ज्यादा पुराने इतिहासकार और जो गवेषक उन लोगों ने रिसर्च करके ये इस नतीजे में पहुंचे कि रामायण से भी अधिक पुरानी है राम से भी पुरानी है राम कथा। राम का कथा अलग अलग जगह में किस तरह से आता था, उसी को लेके बाद में जाके रामायण का फॉर्मुलेशन हुआ। तो हम अभी ये मैं कुछ चीजें, जितना कलरफुल ये स्लाइड आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इतना ही कलरफुल है हमारे भारतवर्ष की ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स। ये हम गुजरात से शुरू किया है, मान लीजिए गुजरात का फॉर्म ले लीजिए, अखाइना ले लीजिए, बाद देन हमने बांध प्रथे कश्मीर से ले लीजिए, फिर इधर से छाव है जो बिहार एंड उड़ीसा दोनों जगह पे है, पुरुलिया में भी छाव है, एंड देन बिहार में भी है, एंड देन इवन हमारे वेस्ट बंगाल में भी छाव का प्रभाव देखने को मिलता है। दशावतार के बारे में है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ये दशावतार का प्रभाव इस तरह से आसाम में भी देखने को मिलता है। फिर देखिए जात्रा वेस्ट बंगाल की एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट फॉर्म है। कलरीपाइट केरला का फॉर्म है, ये एक मार्शियल आर्ट फॉर्म है। मार्शियल आर्ट के जरिए से उन लोगों मार्शियल आर्ट फॉर्म है। इस तरह से तमिलनाडु में भी और एक मार्शियल आर्ट देखने को मिलता है, और हमारे थांगटा मणिपुर में भी एक हमारे ऐसे ही मार्शियल आर्ट फॉर्म देखने को मिलता है। तो कलरीपाइटू इन केरला, देन मांच इन मध्य प्रदेश, देन कथकली अगेन इन केरला, देन
then Nat Sankirtan in Manipur, then Nautanki is very famous in Uttar Pradesh, उड़ीसा में है उदीसी, उजापाली आसाम में है, पांडवानी आप लोग बहुत लोगों ने जानते होंगे, पांडवानी इज इन मध्य प्रदेश, देन पाला, देन दैट इज इन उड़ीसा, इस तरह से राजस्थान में है स्वांग है, देन तमिलनाडु में है तड़कट्टू, देन मणिपुर में थांगता के बारे में पहले बोल चुकी हूँ, उससे भी और एक प्रोमिनेंट फॉर्म है कर्नाटक में यक्षगाना। तो इस तरह से देखे हमारे जो फोक थिएटर फॉर्म है, अभी इसी में आप देखिए, इसमें से जितना फॉर्म है, आप लोग अगर भारतवर्ष की अलग अलग जगह से आप देखेंगे किसी का फॉर्म महाभारत केंद्रिक है, जैसे पांडवानी मध्य प्रदेश का एक बहुत खूबसूरत फॉर्म है, तीजन बाई ने इसको पूरा भारतवर्ष में बहुत फेमस किया, और ये पांडवानी, पांडव बाणी, पांडव इज पांडव, महाभारत का पांडव, पांडव का बाणी, पांडव की कथा, पांडव की गायन, पांडव की बारे में जो कहानी है, कथा है, वो है पांडवानी। बहुत खूबसूरत फॉर्म है, गायन शैली के जरिए से उसको कम्युनिकेट, स्टोरी टेलिंग किया जाता है, सो दैट इज पांडवानी। तो इस तरह से इसकी ऑपोजिट में आप देखेंगे, मान लीजिए रामलीला, मान लीजिए नौटंकी का, मान लीजिए यक्षगाना, ये सब में कर्नाटक से है यक्षगाना, ये सारे फॉर्म में राम का कथा कहा जाता है। फिर कुछ फॉर्म है जिसमें रामायण के कथा कहा जाता है, और कुछ फॉर्म ऐसा है जैसे पुराणों के बारे में कहानी है, जैसे असम के उजापाली, वो पद्म पुराण के ऊपर है, पद्म पुराण की कहानी हमारे इसके जरिए से, उजापाली के जरिए से पद्म पुराण की कहानी बोला जाता है, वो उसमें नाग देवताओं के बारे में बोला जाता है। मतलब आप देखिए, जो अभी जो हिंदुत्व का हम रूप देखते हैं, उसके एंशिएंट एज में जाके हम देखते हैं, जो एंशिएंट मतलब जो जिसमें पत्थर की पूजा किया जाता था, ट्री का पूजा किया जाता था, एनिमल को पूजा किया जाता था, स्नेक को पूजा किया जाता था। तो ये सारे मतलब पुराण की जो कहानी है, मतलब भारत की आदि हिंदुत्व व आदि भारतीयत्व के बारे में जो कहानी है, वो सारे कहानी भी हमारे ये फोक फॉर्म में देखने को मिलता है। तो मूलतः मैं आप लोगों को ये कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, जो एंशिएंट इंडियन जो भारतीय परंपरागत जो नाट्य शैली है, वो नाट्य शैली के जरिए से एक तो हम रामायण का कहानी फिर से अलग अलग रूप से बोल रही हूँ, नहीं तो महाभारत का कहानी बोल रहे, नहीं तो पुराण का कहानी बोल रहे। सो एंशिएंट लिटरेचर को फिर से हम लोगों ने ये फॉर्म के जरिए से अपने समय के हिसाब से कहानी दर्शकों को व मानव समाज को व समाज के साधारण जनसाधारण के सामने वो किया जाता, कहा जाता था। जनजीवन ऐसा ही हुआ करता था, जैसे एंशिएंट समय पे, जैसे हम लोगों का इतिहास जहां से शुरू हुआ, हम लोग मानव इतिहास की बिगिनिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, जो पत्थर पूजा के बारे में आता है, ट्री को व पेड़ पौधे को पूजा करने के बारे में आते हैं, और उसके समय पे जब लैंग्वेज नहीं था, जो भाषा की आविर्भाव नहीं हुआ था, तो उस समय पे तो लोगों ने अंगी भंगी के जरिए से, अंगी भंगी, अंग भंगी, जो हाथ का जेस्चर है व पैरों का जो जेस्चर है, जब पूरा बॉडी की जो जेस्चर है, ये जेस्चर्स को लेके कहानी कहा जाता था। साउंड के लिए, साउंड को उन लोग लैंग्वेज की तरह से इस्तेमाल करते थे। सो इसीलिए इस तरह से जो पत्थर पूजा व अग्नि की जिस समय पे आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय से हमने देखा है कि स्टोरी टेलिंग की प्रभाव हुआ, स्टोरी टेलिंग की एक प्रक्रिया पूरा भारत में हमेशा ही विराजमान है। हम अभी एंशिएंट जो मंदिर में जब जाते हैं, हम देखते हैं कि पत्थरों में किसी तरह से उन लोगों ने डिजाइन करके रखा है। सो पत्थर में एक एक स्लाइड में वो जो कॉमिक की कॉन्सेप्ट वहां से आया, जैसे एक एक स्लाइड व एक एक पत्थर में एक चित्र करते थे, उसके कहानी का पहला हिस्सा आते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे, उसका दूसरा चित्र बनता था, ये कहानी आगे बढ़ते थे। सो पत्थर से चित्र के जरिए से कहानी कहने से लेके फिर जो मौखिक लिटरेचर, जो सिर्फ बोलने की, जो कथा गायन की शैली से, जिसमें लिखन नहीं होता था, आज के समय की तरह से हम लिखते, वो लोग नहीं पाते थे, क्योंकि कैलीग्राफी डेवलप नहीं हुआ था, लेटर्स नहीं डेवलप हुआ था, किंतु संस्कृति हमेशा प्रभावमान था, हमेशा प्रभावमान था, हमेशा बहते जाते थे नदी की तरह। वही कल्चर है, वही अच्छा डेफिनेशन है। संस्कृति हमेशा ऐसा चीज है जो हमेशा बहते हुए जाते हैं। मैं इसीलिए बहने की बात आप लोगों के सामने ला रही हूं, क्योंकि बहने के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है कि कहानी कैसे रंग बदलते थे, कहानी किस तरह से रंग बदलते, राम कथा
किस तरह से बदल के पूरा भारतवर्ष के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरह से राम कथा की रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को मिलता है। जो रामायण तुलसीदास ने लिखा, जो माधव कंदली ने रामायण लिखा, ये सारे रामायण में डिफरेंस है। राम एक ही है, सीता वही है, रावण वही है, लक्ष्मण वही है, दशरथ वही है, अयोध्या वही है, वही एक कहानी। लेकिन वो जो कहानी बोलने का जो तरीका है, आज मैं आपको इस तरह से ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म्स, ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर के ऊपर आपको कहानी सुना रही हूँ मान लीजिए, तो इस तरह से कोई और दूसरा स्कॉलर जब कहानी सुनाएगा शायद वो अलग ही एक पर्सपेक्टिव से सुनाएगा। तो ये कहानी कहने की जो तरीका है उसके साथ एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा जुड़ा हुआ होता है। तो इसी कारण हमारे जो भारतीय कल्चर है, भारतीय ट्रेडिशन है, हमें देखने को मिलता है वो किस तरह से राम कथा ही अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप लिया है। रावण का कथा हो व राम, जैसे रामलीला में कैसे रावण बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, लेकिन किसी और जगह पे जो राम कथा है उसमें रावण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राम को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। कभी एक कहानी में राम को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, कभी हमारे रावण को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, कभी रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी सुनाया जा रहा है, कभी राम की नजरिए से, राम की दृष्टिकोण से वो कहानी सुनाया जा रहा है। लेकिन ये है एक बहुत ही खूबसूरती बात है जिसके कारण भारत की पूरा शैली, भारत की पूरा जो ट्रेडिशनल फॉर्म व ट्रेडिशनल थिएटर, उसका रूप अलग अलग हुआ है। और इसी के कारण एक तरह से एक डाइवर्स फॉर्म की क्रिएट हो रहे, डाइवर्सिटी, एक वैचित्र, अलग अलग जगह राम की कहानी अलग है, अलग अलग जगह पांडव का कहानी अलग है। तो बाद में धीरे धीरे फोक थिएटर ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर की जो फॉर्म है, इसका जो रंग और रूप है, उसके बारे में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को इसके बारे में और बताती रहूंगी। इसके बीच में मैं इसीलिए ये लिख रही हूँ, जैसे रामायण टेलिंग द स्टोरीज ऑफ राम टू द मास पीपल इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ट्रेडिशनल, परंपरागत नाट्य शैली में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात हुआ कि महाभारत का कहानी बोलना। सो हमारे ये दोनों, हमारे जनजीवन सदियों से इसी तरह से रामायण और महाभारत हमारे बीच में व हमारे आत्मा में, हमारे भारतीय लोगों के साथ एक भारतीय एलिमेंट इस तरह से जुड़ा हुआ है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। तो ये इसी के साथ रामायण महाभारत की बात छेड़ते हुए ही मेरे दिमाग में जो एक पॉइंट हमेशा घूमते रहते हैं, वो भी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। रामायण महाभारत कभी ये हिंदुत्व अभी के वो हिंदू और रिलीजन बेस कभी नहीं था। तो रामायण हर कोई लोग बोलते थे। अभी जैसे हम देखेंगे इंडोनेशिया में जो मुसलमान कम्युनिटी की लोग भी है, उन लोगों के बीच में भी एक राम का कहानी बोलने का एक परंपरा है। तो वो ट्रेडिशनल और बहुत पुरानी परंपरा है। इस तरह से यही चीज हमें थाई फॉर्म में भी, थाईलैंड में जो राम का कहानी बोलने का ये थाई रामायण बोलने का परंपरा है, उसमें भी देखने को मिलता है। उसी के साथ मैं फिर जोड़ती हूँ, हमारे कार्बी आंगलोंग में भी, छोटा छोटा नॉर्थ ईस्ट में भी जितना लोग है, जैसे स्पेशली कार्बी लोगों के बीच व मिसिंग लोगों के बीच में भी उनकी रामायण की अवस्थिति देखने को मिलता है। तो उन लोगों को, कार्बी आंगलोंग का जो लोग है, उन लोगों के बीच में जो, मैं कार्बी के बारे में इसीलिए उदाहरण दे रही हूँ, रामायण एक बहुत बड़ा संस्कार है, एक संस्कृति है। रामायण हमारे लिए एक परंपरा है itself। यही परंपरा का वेव, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जनजाति लोगों के बीच में भी इसका प्रभाव से कम मुक्त नहीं था। उनके बीच में भी, जबकि कार्बी लोग वेदर को प्रे करते हैं, ट्री को अभी भी प्रे करते हैं, सांप को प्रे करते हैं, जो एनिमिस्टिक हिंदुइज्म है वो उन लोग बिलीव करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन लोगों के बीच में भी एक राम कथा कहने का एक परंपरा है। वो उन लोगों को साबिन आलून बोलते हैं। बड़े खूबसूरत उन लोगों की सुर ताल लय है, उसके वो जनजाति है, उन लोगों के बीच में भी ये राम का कहानी बोलने का एक परंपरा है। जैसे इसी तरह से नेपाल में भी रामायण करने का, भानुभक्त ने नेपाल में वो रामायण को उन लोगों ने कंपोज किया, मतलब वो कंपाइल किया। फिर असम में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो माधव कंडली का रामायण है। फिर जो कार्बी आंगलोंग की जो उदाहरण दे रही हूँ, वो हो गया है ये हो गया है हमारा साबिन आलून। तो ये सब में मैं ये बोलना चाहती हूँ कितना वेराइटी है राम को
कहानी बोलने का, राम का कहानी बोलने का ही कितना वेरिएशन हमारे सबके बीच में है। तो महाभारत का ट्रेडिशन भी बोलना हमारे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मैं बार बार रामायण महाभारत को इसलिए भी इम्पोर्टेंस दे रही हूँ क्योंकि आज के समय के कॉन्टेक्स्ट में मैं जब देखती हूँ कि रामायण और महाभारत हमारे लिए एक आत्मा हो के हमारे शिल्प कला के आर्ट प्रैक्टिस में वो एक हमारे मेन मुद्दा अभी भी है। राम को जितनी तरह से भी आप इंटरप्रेट करो, रावण को एविल की तरफ से देखो, गुड और बैड दोनों रूप में आप जब भी देखें तो इसकी बहुत सारे तरह से इंटरप्रेट करने का अभी भी बहुत गुंजाइश है। उसके अलावा भी राम में अभी भी रामायण में ऐसे अभी भी बहुत सारे कहानी है जो कहानी शायद हमें दर्शक के बीच में, भारतीय लोगों के बीच में और ले जाने की बहुत ही गुंजाइश है। जैसे उर्मिला की कहानी, जैसे सीता की कहानी, जैसे मंदाकिनी की कहानी, मंदोदरी की कहानी, ये सारे कहानी को फिर से री इंटरप्रेट करना, रीथिंक करना और दर्शकों के बीच में उसको बार बार ये कहानी बोलना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। किसी एक संस्कार के साथ आप जब जुड़े हुए हो और उस संस्कार को, मेरे मानना है ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर की ट्रेडिशन दूसरे रूप में इंडिया में अभी भी जागरूक रहना चाहिए और रह सकते हैं। जो शायद अभी का भी जो हमारे भारतीय कल्चर है उसमें एक भारतीयत्व का रूप देने के लिए सक्षम हो पाएगा। एक फॉर्म के बारे में आप लोग के सामने लेके आती हूँ, ये है पांडवानी। पांडवानी, सो पांडवानी इज ए फॉर्म ऑफ फ्रॉम मध्य प्रदेश। इसमें पूरा क्लियर है, थोड़ी देर पहले आपको बोल के ही आया हूँ, पांडवानी इज ए पांडव का कहानी कथा बोलने का एक परंपरा है। द ओरिजिन ऑफ दिस सिंगिंग स्टाइल आर not known and according to this foremost singer तीजन बाई के जरिए से ही हम पांडवानी हमने ज्यादा जानने लगा। उसके बाद भी और बहुत सारे गायिका आई व कथा गायन शैली को, परंपरा को बिलीव करने वाला शिल्पी आए, आर्टिस्ट आए जिन्होंने इस परंपरा को और बहुत ही आगे बढ़ा के लेके आया। 1980s के पहले से ये कोई महिला ये फॉर्म को रेंडर नहीं करते थे, इस कहानी वो लोग बोलते नहीं थे। तो उसके बाद 1980s के बाद विद द कमिंग ऑफ तीजन बाई ये सारे फॉर्म मैन वोमेन दोनों की तरफ से ही ये कहानी लोगों के सामने गाने का एक नया एडिशन आया। जो एक ट्रेडिशनल जो एक फॉर्म था जो पुरुष ही ये कहानी बोलता था, 1980s के बाद ये महिला भी ये कहानी बोलने लगा। जो महिला की एक इंडिपेंडेंसी बा महिला की जो आंदोलन बा महिला की जो एक आधुनिक समाज में जो नई जागरूकता पैदा हुई उसके लिए ये एक बहुत ही लैंडमार्क स्टेप जैसे माना जाता है। ये एक ट्रेडिशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके जरिए से उन लोग पांडव की कहानी तो बोलते थे। मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद पहले बोल रही थी, इसके साथ साथ और नए पहलू है ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर का, वो लाऊंगी, वो है इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन माने उस कहानी को हम कैसे अलग अलग नए तरह से, मेरा इंटरप्रिटेशन भी, मैं शायद कहानी बोलते बोलते रावण का, मैं जब पांडव का जब कहानी बोल रहे बा युधिष्ठिर की कहानी बोल रहे, भीम का कथा बोल रहे, अर्जुन का कथा बोल रहे, बोलते बोलते मैं अपना इंटरप्रिटेशन भी उसके साथ जोड़ने लगती हूँ। वो एक बहुत बड़ा खूबसूरती है जो इस समय की आधुनिक भारतीय नाटक व ग्लोबल थिएटर एक इम्प्रोवाइजेशन, एक बार नयापन को जोड़ने का एक परंपरा व नयापन को जोड़ने के लिए खोजबीन पूरा ग्लोबली चल रहा है। उस समय देखने को मिलता है भारत में ये इतिहास में कई सालों युगांतर पुरानी एक फॉर्म पांडवानी, उसमें भी ये एक इस तरह से इम्प्रोवाइज करने का परंपरा उसके साथ जुड़ा हुआ था। पांडवानी कैन बी अंडरस्टूड एज ए पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ द टेलर्स ऑफ द टेल्स present in every culture of tradition like baul singing. I'm sure in this way I'm also bringing the reference of baul singing of West Bengal and वो लोगों के बीच में जाके कहानी सुनाते थे, मानव इतिहास के बारे में बोलते थे और ह्यूमन आत्मा के बारे में बोलते, सोल की बात, सोल और शरीर उनके कनेक्शन के बारे में बोलते। सो इस तरह से बाउल सिंगिंग की तरह से ये भी एक स्टोरी टेलिंग करने का परंपरा है और जिसमें हम लगातार इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं। हमारा जो कथा गायक है उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सपेक्टिव है, उसको हमेशा जोड़ते हुए जा रहे हैं।
ये एक बहुत ही आधुनिक है, आधुनिक इन द सेंस एक परंपरागत, एक ट्रेडिशनल होने के नाते भी उसमें हमें बहुत स्ट्रांगली एक आधुनिक एलिमेंट देखने के मिलते हैं कि एक फ्रीडम है, एक स्वाधीनता है, एक स्वतंत्र शैली है जिसके जरिए से आप कहानी को इम्प्रोवाइज करें, बदले। वो एक इंडियन फिलोसफी का, इंडियन दर्शन का, इंडियन संस्कृति का, इंडियन कल्चरल बेस का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत चीज है जिसमें अलाउ करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप बातें कह सकते हो। आपको भीम के बारे में ऐसा महसूस होता है कि भीम तो हर काम भीम ही करता है, लेकिन भीम इज ऑलवेज लाइक यू नो, उसको ऐसे लेना जाता है कि बहुत खाना खाता है और बहुत मोटा है और लड़ाई में ये है और थोड़ा सा फनी है, एंटरटेनिंग है, बट नॉट दैट, थिंक फ्रॉम द भीम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये पॉइंट ऑफ व्यू का डालने का भी ये सारे शैली में गुंजाइश होते हैं। सो आई really appreciate the Tijan Bai's शैली of performance of पांडवानी, and not only Tijan Bai, this कथा गायन, जिस तरह से एक आवाज करके जो हाथ में बीना लेके मयूर की पंख हाथ में लेते हुए ये कहानी एक बुलंद आवाज के जरिए से ऑडियंस के बीच में बोला जाता है। Tijan Bai, she is very famous, very popular and very much loved by people as a storyteller. मैं बीच में सारे वीडियोस आपके साथ लाने के लिए कोशिश करूंगी, क्योंकि आई रियली वांट टू शो यू सम वीडियो हाउ दिस पीपल टॉक्स, किस तरह से वो लोग दर्शकों को कहानी सुनाते थे। पांडवानी लिटरली मीन्स द स्टोरी सॉन्ग ऑफ पांडव, द legendary brothers of Mahabharata, involves the lead singer enacting and singing the episode called Panchang. तो वो लोग पंच अंग से बेसिकली वो सिंगिंग भी करता था और हर कैरेक्टर को इनेक्ट भी करता था। वो ऐसे she will start rendering some poem of Mahabharata, some stories of Pandava, and along with that she act, she give expressions, she give emotions, and then कभी वो कैरेक्टर के साथ में जो सिंगर है कभी दुखी हो गया है और कभी वो वीर की स्टोरी बोल रहे हैं, एक वीर की तरह वो अभिव्यक्ति एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो एक सिंगिंग भी है, साथ में अभिनय है, और मैं साथ में ये भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो आधुनिक भारत की जो रंग प्रशिक्षण की शैली है, इसमें हम लोग कई बार हम वेस्टर्न शैली की तरफ जाते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ जब तीजन बाई जब ऐसे कहानी सुनाती है, बा असम के जब उजापाली में सुनती हूँ, बा मणिपुर का जब संकीर्तन सुनती हूँ, then I realize, you know, this forms of theater has immense potentiality to explore their voice, explore their capacity to enact and give the accuracy of expression according to the Natya Shastra, great book of theater. This is Natya Shastra. As in Natya Shastra, it is very neatly, nicely expressed that the accuracy of expression. आपको कितना express करना है, कितना रोना है, कितना हंसना है, किस तरह से कितना audience और आप किस तरह से आपको गाना गाना है। तो ये सारे चीजों के बारे में बहुत खूबसूरत ढंग से हमें ये देखने के लिए मिलता है। तो ये महाभारत की कहानी बोला जाता है, इसमें बहुत अच्छा तरह से एक तारा, एक जो स्ट्रिंग होता है, एक स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट को हम एक तारा बोलता है, तो एक तारा बजा के वो लोग इसके बारे में ये कथा बोलते हैं। So it is a very beautiful form. Then I am also writing that about the improvisation. Improvisations means आप अपने से कुछ improve करना, बा अपने से उसको बदलना, अपने से उसको थोड़ा improvise कर देना, थोड़ा अपना भी point of view, अपना भी perspective उस कहानी के साथ जोड़ देना is improvisation. Each singer adds his or her unique style to the singing. किस तरह से कहानी बोलेगा, बा किस तरह से बोलेगा, बोलते बोलते कैसा इंटरप्रिटेशन ऐड करेगा, ये बोलने का भरपूर मौका इस तरह सा ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म में काफी है। सो और दूसरे फॉर्म को हम स्टडी करते हैं, देखने का शुरू करते हैं कि किस तरह से दूसरे फॉर्म्स किस तरह का चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका दो शैली है, जैसे हमारे उजापाली का भी दो शैली है, एक सुखदानी और एक व्याखरुजा। इस तरह से पांडवानी का भी दो शैली है, भेदामती एंड कपालिक। ये दो अलग अलग शैली है। मैं बाद में रिसर्चर्स लोगों ने जिस तरह से वो लोग कथा गायन का शैली है, वो दो फॉर्म में, दो स्टाइल, दो तरीका, दो स्टाइल के जरिए से उन लोगों ने ये कहानी बोलते हैं। दैट इज ये। Then I am coming to Sankirtan, that is in Manipuri form.
and it is later period of time. It is related with the bhakti movement. During bhakti movement, this is in 15th century, जिस समय हमारे कबीर ने पंजाब के आसपास जिस समय पे कबीर का लिटरेचर था, कृष्ण भक्ति के बारे में आया था, शंकराचार्य साउथ इंडियन पार्ट ऑफ इंडिया में आया था, चैतन्य देव वेस्ट बंगाल में आया था, शंकर देव आसाम में, माधव देव, ये सारे लोगों का मूवमेंट जो है इसको हम लोग भक्ति मूवमेंट बोलते हैं। भक्ति को इन लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया। कृष्ण भक्ति का गाना है। कृष्ण एक नया अवतार, लेटर पार्ट ऑफ ये हमारे ग्रीक, मतलब वो वेद उपनिषद समय से ही विष्णु ब्रह्मा की जो परंपरा है उसमें से कृष्ण एक नया अवतार था। तो कृष्ण का कहानी बोलने का जो ये है संकीर्तना। कीर्तना इज दिस काइंड ऑफ गायन। कीर्तन इज katha. Sang is the sung is like, you know, these people gathered together and narrating and rendering and giving prayers and giving respect through their different kind of singing and dancing and the narrating pattern. Sankirtana encompasses an array of art performed to mark the religious occasions and various stages in the life of Vaishnava people of the Manipuri plains. मणिपुरी प्लेन्स कहाँ से आता है? बिकॉज मणिपुर आप सोचेंगे देखेंगे चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ एक एरिया है और जो सेंटर में एक जीरो है, वो जीरो ही पूरा सेंटर में जो एक एम्प्टी स्पेस है प्लेन्स एरिया है, वो है मेटे लोग रहने का जगह है। और मणिपुर की चारों तरफ पहाड़ से घिरी हुई एक स्टेट है और सारे पहाड़ों में कुकीज एंड नागा एंड अलग अलग ट्राइबल लोग रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिख रही हूँ कि मणिपुरी प्लेन्स। Manipuri plains means they are different from the tribal culture. वो जो जनजातियों कल्चर है मणिपुर की पहाड़ों में, उस कल्चर से ये बहुत ही अलग है। और इसमें कृष्ण भक्ति का गाना गाया जाता है। संकीर्तन प्रैक्टिसेस सेंटर ऑन द टेम्पल के सेंटर में ये कहा जाता था। इसमें आप लोगों को एक डिफरेंस जरूर समझ में आ रहा है। पांडवनी इज नॉट परफॉर्म्ड इन द टेम्पल। इससे पहले जो मैंने आपको बोल के आई हूँ, उजापाली इज नॉट परफॉर्म इनसाइड द टेम्पल, बट एट द सेम टाइम थेयम इन केरला इज नॉट परफॉर्म इनसाइड द टेम्पल नहीं है, दैट इज इन आउटसाइड टेम्पल। सो ये टेम्पल फेस्टिवल जरूर है। कथकली इज ऑल्सो टेम्पल डांस, थेयम इज ऑल्सो रिलेटेड टू गॉड एंड ऑल्सो लाइक दैट द संकीर्तन ऑल्सो रिलेटेड टू गॉड, लाइक यू नो वैष्णव पीपल। वैष्णव किसको बोला जाता है? दोज हु प्रेज कृष्ण। वैष्णव विष्णु की अवतार कृष्ण है, तो वैष्णव तो उसी से आता है कि वैष्णव, विष्णु पूजा से, विष्णु को प्रे करने से रिलेटेड है कि वैष्णव पीपल इन द मणिपुरी प्लेन। संकीर्तन प्रैक्टिसेस सेंटर इन द टेम्पल वेयर परफॉर्मेंस नरेट्स द लाइव्स एंड डेथ ऑफ कृष्ण थ्रू द सॉन्ग्स एंड डांस के जरिए से मणिपुरी प्लेन्स लोगों ने जो संकीर्तन करते हैं उसके जरिए से हम लोग उन लोगों ने कृष्ण का जीवन मरण का कहानी, कृष्ण का रास लीला का कहानी, शैशव में चाइल्डहुड में कृष्ण किस तरह से दही चूरा के खाता था, कृष्ण और माँ का रिलेशन, कृष्ण और जसोदा का रिलेशनशिप, एट द सेम टाइम कृष्ण और गोपी का रिलेशनशिप, कृष्ण और गकुल में जितने सारे लोगों ने दूध की प्रोडक्ट करते थे उन लोगों के साथ कृष्ण का रिलेशन क्या था। कृष्ण इज ऑल्सो गकुल निवासी। ये सारे कहानी इसके जरिए से बोला जाता है। बहुत खूबसूरत फॉर्म है। आई एम श्योर आई विल मैनेज टाइम टू मेक यू वॉच वन ऑफ द वीडियो। इनका एक वीडियो में बहुत अच्छा आप लोगों के लिए कलेक्ट करके रखा है, वो दिखाना संभव होगा। इन अ टिपिकल प्लेटफॉर्म 2 ड्रामर्स एंड अबाउट द 10 सिंगर्स डांसेस परफॉर्म्स इन द हॉल ऑफ डोमेस्टिक कोर्टयार्ड। बहुत सारे ड्राम लोग मिलकर ड्राम बजाते हैं। उनका ड्रामिंग का पैटर्न भी बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने रिदमिक बॉडी से भी उन लोग डांस भी करते हैं, एट द सेम टाइम उन लोगों ने ड्रामिंग भी करते हैं। और एट द सेम टाइम सम अदर सिंगर्स सराउंड्स दिस ड्रामर्स एंड दे सिंग एंड देन दे नरेट द स्टोरी ऑफ कृष्ण। मैं सिंपल में ये अभी भी बहुत कंटेम्पररी है, मणिपुर में बहुत प्रोमिनेंट है। मणिपुरी लोग उसके साथ बहुत जुड़े हुए रहते हैं, बहुत पॉपुलर है, उनपे बहुत वाइब्रेंट प्रैक्टिस है एंड इट इज ऑर्गेनिक रिलेशनशिप विद द पीपल। ये रिलेशनशिप उन लोग के बीच में ऐसा नहीं है कि एक आर्ट फॉर्म का प्रैक्टिस है और एकदम
जैसे कभी ने जैज सीखने गया, अब मैं जाके कल्लड़ी पाइट सीखा, इट इज नॉट ऑफिशियल अबाउट इट, इट इज बहुत ही अपने जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक जीवन का एक हिस्सा है। जैसे संकीर्तन इज द हार्मोनी ऑफ द रिचुअल वर्ल्ड, यू नो, नेचुरल वर्ल्ड हुज प्रेजेंस एक्नॉलेज थ्रू इट्स मेनी रिचुअल्स। इनके साथ बहुत रिचुअल्स भी जुड़ा हुआ है, किस तरह से पूजा करेगा, किस तरह से भोजन परिवेशन किया जाएगा, ये सारे एक बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया है। Very beautiful dance form. So with drummers, they also like use lots of beautifully white colors cloth and then red ribbons, red threads. It also like इस दूसरे तरह से देखा जाए is lots of design components is there. Lots of design component in how to make it more aesthetical. Indian philosophy का एक और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है aesthetic. एस्थेटिक्स इज नांदनिकता। आप पांडवानी भी देखेंगे, बा ऐसे कुडियाट्यम देखेंगे, बा कथकली देखेंगे, आपको सब में दिखने को मिलेगा ये ब्यूटीफुल है, ये बहुत ही खूबसूरत है। किस तरह से ड्रेसिंग करेगा, किस तरह से कॉस्ट्यूम्स पहनेंगे, किस तरह से मेकअप करेंगे, ये सब कुछ इसके साथ बहुत इस एस्थेटिक ने इस तरह का परफॉर्मेंस और इस तरह का जो कथा गायन, जिस तरह से कहानी बोलने का तरीका है, उसको और एनहेंस करता है। ये स्पेशली मणिपुर में भी देखा जाता है, जिस तरह से उन लोग अपने क्लॉथिंग डिजाइन करते हैं, सेम येलो कलर एंड देन ऑरेंज कलर, व्हाइट एंड बिग पागरीज एंड देन यू नो दिस धुलक, दिस कॉल मृदंग, एक्चुअली मृदंग, और दिस खुल बादन खुल, एंड देन along with that, you know, there is the very nice color, you know, white, they use this manjira, they play this manjira, they use red threads to decorate it. This whole tradition we can find it in Indian culture, decoration, you know, decorating, you know, making beautification, beautifying. ये दो अलग चीज है, एक डिजाइन, एक इंटरप्रेटिव डिजाइन करना और एक डेकोरेशन करना। आप देखेंगे हमारे जो ट्रेडिशनल मंदिर है, बा ट्रेडिशनली हमारे जो घर है, ट्रेडिशनल घर है, बा जो पात्र, जो वेसल्स हम लोग बनाते थे, जो बुक्स हम लोग पहले, जो हमारे जो ताम्र पत्र हो, बा जिस तरह का ये जो सांसी की पत्र में जो उन लोगों ने लेखा करते थे, ये सारे उन लोगों का एक डेकोरेशन करने का टेंडेंसी था और डेकोरेशन करते थे। वो हमारे कहीं ना कहीं कल्चर में, बा हमारे जिस तरह का व्यक्ति है, जिस तरह का हम लोग एक कल्चरली हम लोग जिस तरह से ग्रो हुए हैं, हमारे उस ग्रोथ में ही ये एकदम जुड़े हुए हैं, एक डेकोरेटिव आइडिया, डेकोरेशन करने का। So this is what is about Sankirtana from Manipur, where we are talking about this Krishna Katha, Krishna Katha, বা Krishna Gatha। उससे पहले जिस फॉर्म के हम लोगों ने बात किया, that is Pandavani. In the Pandavani we are talking of the Rama Katha, this Pandava Katha. Now I am coming to this Rama Katha. So Pandava Katha, to Krishna Katha, so then I am coming back to Rama Katha, Ram Lila. So many of us who live in North India visited many places of northern part of India, very much aware of this form, because ये एक makeshift and open field में ये perform किया जाता है। ओपन फील्ड में राम का कहानी कहा जाता है। रामलीला इज द स्टोरी ऑफ गॉड रामा फ्रॉम हिज बर्थ, जन्म से लेके रामलीला, राम की मृत्यु तक, राम की महाप्रयाण तक ये कहानी चालू रहता है, जारी रहता है। तो इसलिए कई बार ये रामलीला बिगिनिंग में तो ऐसा था, ये 9 दिन 10 दिन ऐसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रामलीला का कहानी बोलते रहने का बाद निरंतर एक कहानी परफॉर्मेंस होते रहने का एक परंपरा था। So, ये जब भी मैं एज आधुनिक भारतीय रंगमंच के प्रैक्टिशनर होने नाते ये जो ट्रेडिशनल फॉर्म को मैं दोबारा देखती हूँ, सो वो पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपके साथ जोड़ना चाहती हूँ। मैं हमेशा देखा है, ये अभी हमारे पास समय का पाबंदी ऐसे आ गया, हम 1.5 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकते, लेकिन भारतीय कहानी जैसे हम देखते हैं, संस्कृत नाटक भी जो हुआ करता था, लगातार दिन रात जो कुछ परफॉर्मेंस दिन में शुरू होता था उसके इमोशन के हिसाब से, और रातों तक वो परफॉर्मेंस चलते थे। सो राम का कथा, रामलीला भी ऐसे ही दिन रात निरंतर ये कहानी जब तक खत्म नहीं होता था, दर्शक जब एंजॉय करते थे उसको 2-3 बार रिपीट किया जाता था। बड़े एक दर्शक और ऑडियंस का, दर्शक और ऑडियंस मींस दर्शक एंड परफॉर्मर मींस कलाकार और दर्शक का एक बड़े आदान प्रदान का ये एक बड़े गहरा रिलेशनशिप है। आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, दर्शक को अच्छा लगता है, फिर वो
दर्शक के लिए फिर दोबारा उसके बारे में परफॉर्म किया जाता है. The epic recites his childhood along with those others who were the major characters in it, like Sita, रामायण का रामलीला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है. Lakshmana is an important character. Ravana, these are the main characters that's depicted in Ramlila, along with all other characters like Mandodari, then Bibhishan, then Hanuman, then Bali, then Sugriva, then ये सारे कहानी, ये खूबसूरत कहानी को छोड़ा नहीं जाता है. It includes chapters of the marriage of Sita and Rama, then exile of Rama because of the dharma request is to give up his throne, and Sita and Lakshmana joining him in the exile, you know. वो जो exile का कहानी है, 12 वर्ष जो वनवास में जाने का जो कहानी है, वो भी इस रामलीला के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है. अलग अलग मुनियों के साथ ये अलग अलग लोगों ने किस तरह से भेष बदल के आके उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए कोशिश करना, ये सारे बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है. The journey through the India and the meeting revered the rishis of Hinduism and the abduction of the Sita by Demon Ravan and the sorrow of Ram and Lakshmana, their helplessness, वो असहाय हो जाना, helpless हो जाना, रावण सीता को ले जाने का जो कहानी है, फिर उसके बाद असहाय होना, फिर उसको गाने के जरिए से बोला, फिर भगवान और राम और रावण के बारे में जो युद्ध होता है, लड़ाई होता है, ये आज भी और गुड और बैड. तो रावण को हम लोगों ने वन डायमेंशनली देखना शुरू कर दिया था कि ये बैड एलिमेंट है और राम इज ए गुड एलिमेंट. सो ये लड़ाई दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई ना होके गुड और बैड की लड़ाई तक ये गुड और बैड की लड़ाई तक ये पर्यवेक्षित, मतलब ये एक्सपेंड होता है. दिस fight between Rama and Ravana extended to a fight as if it is between a good element and bad element. That is a very, very important component in Ramayana. The destruction of Ramayana is decided as the evil elements are supposed to die in any point of time. तो रावण का मृत्यु को एक रावण की मृत्यु के रूप में देखा नहीं जाता है. वो ही रामलीला का एक्चुअली सबसे खासियत है, पॉइंट है कि रावण का मृत्यु को रावण का मृत्यु के रूप में देखा नहीं जाता है. रावण का मृत्यु दुनिया से बैड एलिमेंट हट जाने का, दुनिया से सारे बैड एलिमेंट का हटा देने का एक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है. सो इसीलिए जो दशहरा होते हैं तो वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. और ये पूजा पाठ, घरेलू गृहस्थ जीवन में भी ये एक तरह से रावण वध जो दशहरा उसके दिन का में रावण को जलाया भी जाता है. तो ये बैड एलिमेंट का मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है. एंड देन राम वापस आना और अयोध्या में उनका फिर से प्रतिष्ठित होना एज ए राजा, और यही रामलीला का मुख्य कहानी है. सो यस, सो दीज आर सम पुराने स्लाइड. ये अभी का महाभारत का नहीं है, ये अभी का रामलीला का नहीं है, बहुत पुरानी. जिस तरह से आप देख सकते हैं ये जो बैकड्रॉप वो लोग इस्तेमाल करते थे, ये देखिए किस तरह से उन लोगों ने बैकड्रॉप इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंडियन ट्रेडिशन. जब थोड़ा ड्रामा होना शुरू किया, जैसे रामलीला आना शुरू किया, रामलीला प्रोबेबली वन फॉर्म दैट वेयर लॉट्स ऑफ आधुनिक थिएटर के एलिमेंट उन लोगों ने उसी समय लेके आया था. जैसे डिजाइनिंग, जैसे उनका पीछे का दृश्य बदल जाना, जब कहानी बदलते हैं, लोकेशन बदलते हैं, उसके साथ साथ बैकड्रॉप का कहानी बदल जाना इज बिकम ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेनन. तो उसके जरिए से एक तरह से ये तो पॉसिबल नहीं है. रामलीला में कितना सारा लोकेशंस के बारे में, राम कभी उधर गया रावण के साथ, ये गया कभी दुर्गा पूजा करने के लिए बैठा, कभी हनुमान हिमालय गया, ये अलग अलग लोकेशंस रामलीला में देखा जाता है. तो ये सारे लोकेशंस को तो हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो पीछे से पटकथा इस्तेमाल करने का ट्रेडिशन आया. मेकअप को एक बहुत इंपॉर्टेंस देना शुरू हुआ, प्रॉपर्टीज, जिस तरह से कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, एक पूरा डिपिक्शन ऑफ द जिस तरह से विजुअल्स हमारे सामने राम की जो अवतार को लेकर, जो राम का जो रूप हमारे सामने था, वो फिर से मंच में 3 डायमेंशनल फॉर्म में वो लोगों ने क्रिएट करने के लिए एक प्रयास किया. प्रयास नहीं, ये बड़े प्रयास, बहुत सफल प्रयास था, सफल प्रयोग था. जो अवतार के
तस्वीर व कथा गायन के जरिए से जो बोलता था, राम का नेत्र ऐसा था, राम का हाथ इतना लंबा था, फिंगर्स ऐसे था, राम का फेस लंबा था, देखने के लिए ऐसा था, ये जो वर्णन है शरीर को लेकर जो वर्णन है, वो वर्णन के आधार पे रामलीला में इस तरह से कायिक अवयव 3 डायमेंशनल फॉर्म में एक आना शुरू हुआ। आई थिंक दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द आधुनिक भारतीय नाटक के लिए भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आप देखिए ये कितना खूबसूरत है कि एक ओपन एयर में हमेशा किया जाता है, लोग ऐसे चारों तरफ से घेरे रहते हैं। अभी तो धीरे धीरे 2 साइडर होने लगा, अर्लियर इट वाज इन 3 साइडेड, 3 साइड से लोग खड़ा होके बैठ के दिन रात एकाकार करके ये रामलीला का कहानी सुनने के लिए वो लोग जाया करते थे। दिस इज ए वेरी मॉडर्न, तो मैं अलग अलग तरह से आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये एक इवोल्यूशन का देखिए किस तरह से रामलीला भी परिवर्तन होते होते अभी तक आ रहे, उनका फॉर्म, उनका स्टाइल, उनका प्रेजेंटेशन करने के तरीका, ये सब भी एक विवर्तन, अब इवोल्यूशन माने विवर्तन, एक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते हुए अभी भी बहते हुए जा रहे हैं। So this is one slide that represents very contemporary form of, like, you know, in a village based, yeah, look at this Ravanas, this kind of designs, you know, it is a different, it is very modern, you know, very समय बदलने के साथ साथ बा जिस तरह से मटेरियल्स बदलते हैं, बा पहले थोड़ा इतना प्लास्टिक एलिमेंट बा, थोड़ा जिंक बा, फाइबर एलिमेंट इतना ज्यादा नहीं था, तो कागज से वो लोग ये सारे मूर्तियां बनाया करता था ट्रेडिशनल फॉर्म में। और अभी जैसे अलग अलग मटेरियल आने लगा, तो उसके साथ साथ हम लोग अलग तरह से ये सारे उनका डिजाइन, उनके सोच, फिर जो डिजाइनर ये सब डिजाइन करते हैं, ये जो मूर्तियां जो लोग बनाते हैं, उनका भी प्रोस्पेक्ट इसके साथ जोड़ के ये लोग बनाते हैं। आई थिंक इसके जरिए से, इस स्लाइड्स के जरिए से मैं आपको ये बात इम्फेसिस करने के लिए कोशिश कर रहे हो, जैसे रामलीला को तो हमने बोल दिया भाई ये ट्रेडिशनल फॉर्म है, रासलीला को तो बोल दिया कि हमने ये ट्रेडिशनल फॉर्म है, तो मैं बोल रही हूँ कि ये ट्रेडिशन हमारे अभी भी जिंदा है हमारे बीच में। कुछ तो ट्रेडिशनल फॉर्म है जो हमसे, हमारे हाथ से छूटे हुए जा रहे हैं, हमसे निकलते हुए जा रहे हैं, हमसे दूर होता जा रहे हैं, हम उनको संभाल के रख नहीं पा रहे। कुछ फॉर्म ऐसा है जो अपने आप में भी बहुत स्ट्रांग है, उसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, परफॉर्मिंग, इनेक्टिंग, एंड वो सारे फॉर्म अभी भी हमारे बीच में एक जीवंत, एक एक्टिव ट्रेडिशनल फॉर्म वो विवर्तित रूप में आके हमारे बीच में अभी भी एक्टिव है। अभी भी दिल्ली में, आगरा में, नॉर्थ इंडिया में, आप कहीं पे भी जाए आपको रामलीला देखने के लिए जरूर मिलेगा। और अभी भी स्कॉलर्स रामलीला के ऊपर काफी रिसर्च करे जा रहे हैं। देन ये भी और एक इम्पोर्टेंस अलग चीजों के बारे में है, दैट इज अबाउट द मेकशिफ्ट ओपन एयर थिएटर। मेकशिफ्ट, अभी देखिए संकीर्तन जो है हम लोग मंदिर के अंदर करते हैं, जैसे ठेयम के बारे में मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ, मंदिर की बाहर के इलाका में करते हैं। कथकली जो हमारे फॉर्म है वो मंदिर के अंदर किया जाता है। कल्लरीपाइट जो है उनके लिए एक अलग गृह होता है, अलग घर होता है, गृह मीन्स घर, अलग गृह होता है, अलग देवता होता है, उस देवता का पूजन करके उस कल्लरीपाइट की जो टेम्पल है उसी टेम्पल के अंदर ही कल्लरीपाइट भी किया जाता है। तो आई मीन टू से आवर ट्रेडिशनल फॉर्म्स बिलोंग्स टू द इनसाइड टेम्पल। कुछ तो फॉर्म ऐसा है जो टेम्पल के अंदर से है, कुछ तो है जो टेम्पल के बाहर से है, कुछ तो ऐसा फॉर्म है जो घूमते हुए है, जैसे पांडवानी ले लीजिए, जो घूमते हुए, घूम के कहानी बोलने का, बाउल है जो घूम के कहानी बोलने का है, ये है। तो ये जो अभी फॉर्म है ये मेकशिफ्ट, ये ओपन जगह पे होता है और लोग एकदम खुले मैदान में इसका मजा लेते हैं। तो ये इसमें एक्चुअली इसीलिए रामलीला जाके बहुत ज्यादा धार्मिक प्रभाव से अभी भी बचा हुआ है। धार्मिक प्रभाव, धर्म अलग है, धर्म से रिलेटेड ये नहीं रहे, और गुड और एविल की एक लड़ाई के रूप में रामलीला को अभी भी देखा जाता है। सो ये ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइज्ड इन ए ओपन फील्ड, ओपन मेकशिफ्ट एयर, माने मेकशिफ्ट ओपन एयर थिएटर में होता है, एट नाइट में किया जाता है, यूजुअली स्टेजेड, एमएसआर एक्टिंग टीम्स, एमएसआर थिएटर लोगों ने इसको परफॉर्म करते हैं। ये लोग अपने आप सीखते हैं, ट्रेडिशन में, ट्रेडिशनली वो लोग सीखते हैं, परंपरा के हिसाब से वो लोग सीखते आते थे। ड्रो फॉर्म ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस, मैन एंड वुमेन, एल्डरलीज एंड यूथ, ऑल प्ले डिफरेंट पार्ट। मतलब बहुत सारे फैमिली लोग बा, अलग अलग क्लास के, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग एज के लोग इन्वॉल्व होके इसको परफॉर्म किया जा सकता है। दैट इज वन इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग ऑफ तो रामलीला।
आप ऑब्जर्व करके देखिए, जिस तरह से कुछ फॉर्म बहुत ही टेम्पल ओरिएंटेड है और कुछ ही खास लोग कर पाते हैं। कभी कभी तो बहुत सारे फॉर्म सिर्फ मर्दों को करना है, पुरुष ही कर सकता है, फीमेल्स ये करने के लिए अलाउड नहीं है। उसके ऑपोजिट पे रामलीला क्रिएट्स यू ए वेरी 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 ओपन स्पेस टू एक्सप्रेस अबाउट योर थॉट्स एंड पर्सपेक्टिव। ये रामचरितमानस को केंद्रित है। The recitals and the narratives of the play is usually based on Ramcharitmanas. Ramcharitmanas के ऊपर आधारित है। Dialogues are improvised and often responsive and होता है। इसमें ढोल बजाते हैं, ड्राम है, म्यूजिक है, बांसुरीज है, एंड फुंगल है, एंड इस तरह से एक बड़े म्यूजिक टीम उनके साथ होता है रामलीला में। इस तरह से रामलीला को परफॉर्म किया जाता है। मेरे जो आज पार्टिसिपेंट्स है उसको कुछ चीजें ये बड़े लेक्चर हो ना जाए, बहुत प्योर फॉर्म पे हम बात ना करें, बहुत प्योरिटी की तरफ ना जाए, ताकि इतना वास्ट एरिया के बारे में हमें कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव मिल जाए जिसमें से जाके उनको भविष्य में अपने जैसे बच्चों को आप लोग पढ़ाते होंगे, पढ़ाते समय आप इस तरह का कथा गायन शैली को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आप लोगों ने स्टडी किया, ट्रेडिशनल फॉर्म को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ दिस परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म कैन बी पार्ट ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन। केमिस्ट्री सिखाना, मैथ सिखाना, जियोग्राफी सिखाना, कोई भी सब्जेक्ट सिखाने में ये परफॉर्मिंग आर्ट कैसे आपको मदद कर सकते हैं। मैं इसीलिए आपको कुछ चीजों के प्रति हमेशा बार बार बोल के ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि कभी वो टेम्पल केंद्रित है, कभी बड़े ओपन है, ये धर्म से बिल्कुल परे है, धर्म की जो ऑरा है उससे परे इसको किया जाता है, कुछ तो है अपने से इम्प्रोवाइज करके किया जाता है। तो इस सारे एलिमेंट्स को आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से भी आप अपने टीचिंग में हम हमारे टीचिंग में हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव को आप कभी भूले ना, इसकी गुंजाइश को आप अपने दिमाग में, जहन पे घुमाते रहिए। उसके बाद मैं एक दूसरे तरफ की कहानी की तरफ आ रही हूँ। मैं पहले आप लोगों को महाभारत के कहानी की बारे में बोला, पांडवानी के उदाहरण लेके, उसके बाद मैं कृष्ण कथा को लेके संकीर्तन को लाया, उसके बाद मैंने अपने राम कथा को लेके रामलीला को लाया। अभी मैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव का आर्ट फॉर्म्स को ला रही हूँ, एक साथ ला रही हूँ। एक है केरला से और एक है मणिपुर से, वो है मार्शियल आर्ट फॉर्म्स। मार्शियल आर्ट फॉर्म्स है, ये कलरीपायटू बोला जाता है केरला में और ठंगता बोला जाता है मणिपुर में। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, मैंने दोनों फॉर्म ही सीखा है। मैं केरला में जाके करीब 3 महीना रह के, त्रिशूर में एक जगह है गुरुवायूर, उसके पास एक पालक्कड़ चावक्कड़ बोल के विलेज है, उसमें कृष्णदास बोल के गुरु है, उनके गृह में रह के गुरुकुल प्रक्रिया में मैंने 3 महीना के लिए कलरीपायट अध्ययन किया था। इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी हेल्दी फॉर्म ऑफ आर्ट, मुझे बहुत पसंद है। एट द सेम टाइम ठंगता, दैट इज फ्रॉम मणिपुर, ये भी बहुत खूबसूरत मार्शल आर्ट फॉर्म है। दोनों के बारे में मैं दोनों ही क्योंकि स्टडी किया, तो दोनों स्टडी करने के कारण मैं आपको कुछ खूबसूरत बातें बता सकती हूँ। वो है दोनों का टेक्निक में डिफरेंस क्या है। दोनों ही मार्शियल आर्ट फॉर्म है, फाइटिंग को लेके है, फाइट करने का टेक्निक को लेके है, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि ये जो कलरीपायटू है ये फ्रंट किकिंग, जो लेग जाके ऐसे किक करता है, पैर जाके आगे किक करने का जो परंपरा है, वो जैसे फ्रंट किकिंग का टेक्निक है कलरीपायटू में, और ठंगता में वो बैक किकिंग की प्रक्रिया है, बैक से हम किक करते हैं। दैट इज द मेजर डिफरेंस। बट दोनों ही बहुत 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 ही खूबसूरत फॉर्म है। ये देखिए कैसे फ्लाई करते हैं ये लोग, फ्लाई करके ये लोग इसको एस्टेब्लिश करते हैं, फ्लाई करके करके वो लोग ये करते हैं। ये एक ठंगता का तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ, जिसके जरिए से वो लोग एक ट्रेनिंग प्रक्रिया जंगल के अंदर कर रहे हैं। ये जैसे केरला है वो उसके पास सागर है, इसीलिए सागर के किनारे करते हैं, और जो मणिपुर है जो फॉरेस्ट एरिया है, तो वो लोग ये जंगल के अंदर करते हैं। ठंगता, ठंगता इज ए मणिपुरी मार्शियल आर्ट फॉर्म कॉल्ड ठंगता, sword and spear and dedicated to fighting skill and worship। ये फाइटिंग को उस समय पे ऐसे लिया जाता है कि फाइटिंग लड़ाई नहीं है, आज जैसे हम फाइटिंग समझते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट से बाहर आके थोड़ा देखिए, फाइटिंग करना भी एक तरह से वर्शिप था। इस तरह से मैं आपको एक नागालैंड की रेफरेंस देना चाहती हूँ। नागालैंड में भी हम देखेंगे, आओ नागास के बीच में एक परंपरा है, कितना लोगों का हम लोग सर काट सकते हैं, और कितना लोगों का सर लाके हम घर में रख रहे हैं, उसी के हिसाब से मेरा पावर समझा जाता था। तो एक तरह से पुराने समय पे जो युगांतर से आगे
ये नागालैंड का भी जो कहानी बोल रही हूँ ये अभी का कहानी नहीं है, ये गलत नहीं समझे कि नागालैंड के बारे में आप लोग बहुत ही कम एक्सपोज होंगे उनके कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में। बहुत खूबसूरत सिंगिंग ट्रेडिशन है, ड्रेस नृत्य से भरे पूरे जगह है, लेकिन मैं पुरानी इतिहास के बारे में ही क्योंकि बात कर रहे हो इसलिए बोल रही हूँ कि वो जो फाइटिंग इज नॉट फाइटिंग विथ समवन, फाइटिंग इज ऑल्सो एट द सेम टाइम वर्शिप। फाइट करना भी एक वर्शिप है, राम का पूजा करना जैसे वर्शिप है, जैसे रावण का, जैसे कृष्ण का ये करना जैसे एक वर्शिप है, तो इसी तरह से हम देखेंगे तो हमारा जो थांगटा है वो भी एक वर्शिप है एक तरह से। द मेटिस creation of Thangta goes back to antiquity. The Asiva was asked to create the universe by his father. फादर उनको एक बाप ने बेटे को यूनिवर्स क्रिएट करने की बात करते थे। सतीबा, द मोमेंट एंड द पैटर्न ऑफ द क्रिएशन ritualistically known as Thango was revealed as human movement patterns as Thangta. Today, this Thangta has passed into ovulation and survive and solutions. थांगता जुग युगांतर क्रॉस करके आके अभी भी बहुत सारे जगह है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे संस्था है जिसमें थांगता का ट्रेनिंग दिया जाता है और लोग उसको अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की तरह, जैसे मानो जैसे उड़ीसा में मानो जैसे ओडिसी नृत्य सीखा जाता है, आसाम में सत्रिया नृत्य सीखा जाता है, बा देवधनी सीखा जाता है, बा उजापाली सीखा जाता है, इसी तरह से मणिपुर में भी थांगता सीखा जाता है। The film tracks the elements of its art against the blend of martial and the spiritual element in the psyche of the Manipuri people. ये लोगों के जनमानस means मानव की, मणिपुरी लोगों का, मेइतेई लोगों का एकदम तन बदन में ये थांगता जुड़े हुए एलिमेंट है। Then I would love to come back and give some introduction to the Kalaripayattu. Kalaripayattu is also it is known as the Kalari. I also used to say this Kalari. Kalari has many kind of exercises, like lots of leg exercises, 1 2 3 4 करके numbering करके varieties of ये है। फिर then animal movements like the snake movement, then deer movement, then elephant, then हाथी का movement, अलग अलग animals का मूवमेंट्स को लेके उन लोगों ने फिजिकल प्रैक्टिस तैयार करते, क्योंकि ये माना जाता है कि आप शॉर्ट से फाइट करने से पहले आपको जो ध्यान चाहिए, जो एकात्म होना चाहिए, बस जिस तरह से कंसंट्रेशन की जरूरत है, वो कंसंट्रेशन एक्वायर करने के लिए आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत है। उस प्रैक्टिस के लिए कालारिपायट्टू में लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज उन लोगों ने डेवलप करके रखा है और ये बोला जाता है 3000 years ago, 3000 पुरानी ये सब कहानी है जिस समय से कालारिपायट्टू लोगों के बीच में प्रचलित है, मार्शल आर्ट फॉर्म है। दिस इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया। थांगटा से भी पुरानी फॉर्म बोल के इसको माना जाता है, 3000 एज पुराना माना जाता है। एंड ये बहुत सारे कलेक्शंस, बहुत सारे बेलाज राइटिंग्स में सेकावर्स ये लिखा हुआ है, सेकावर्स एंड देन मालावर रीजन्स के केरला में ये बहुत पॉपुलर है। एंड ये मार्शल आर्ट का जो फॉर्म है एंशिएंट बैटलफील्ड में इस्तेमाल किया जाता था। डिजाइन फॉर द एंशिएंट बैटलफील्ड, ये डिजाइन भी किया जाता था आज, मतलब एंशिएंट बैटलफील्ड में कैसे लड़ाई किया जाएगा उसको ध्यान पे रख के ये सारे मार्शल आर्ट फॉर्म को तैयार हुआ था। द वर्ड कलरी मीन्स इज बैटल फाइट, कलरी इटसेल्फ इज अ बैटल फाइट। सो इसका और दूसरा मीनिंग बोलने की जरूरत है, विथ वेपन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स एंड द टेक्निक्स दैट आर यूनिक टू इंडिया। ऐसे कुछ टेक्निक व्हिच इज, जैसे आप लोग बहुत टाइक्वांडो के बारे में सुना होगा, टाइक्वांडो हो बा कराते हो, ये सारे फॉर्म से ये बहुत ही अलग है। और ये एट द सेम टाइम ये मार्शल आर्ट फॉर्म बहुत ही, मुझे हमेशा इंपॉर्टेंस देना पसंद करती हूँ। इंडियन कल्चर इज डिजाइन, इंडियन कल्चर इज कंप्लीट फॉर इंडियन पीपुल। इट इन्वॉल्व्स विद हेल्थ केयर। ये जो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस है इसी में अंदर हमारे हेल्थ केयर घुसे हुए हैं। हेल्थ केयर के लिए आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। मेडिकेशन सिस्टम, आपको क्या होने से क्या खाना चाहिए, हर्बल मेडिकेशन कैसे करना, ये सारे हमारे ट्रेडिशन के साथ जुड़े हुए। तो ब्रीदिंग टेक्निक, ध्यान, प्रेयर्स, वर्शिप, सारे पूजा भी उसके साथ है ना, लड़ाई भी उसी के साथ है, हेल्थ केयर भी उसके साथ है, मेडिकेशन भी इसके साथ है, रिचुअल्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। सारे नियम, प्रणाली, प्रक्रिया, कैसे समाज चलेगा, समाज चलने के लिए हमारे कुछ नियम की जरूरत है। जो वेद उपनिषद में भी हम स्टडी जब करते हैं, हम देखते भी उसमें भी वो जो गृह सज्जा बा यजुर्व वेद हो बा, प्रति वेद में, एवरी वेद, चारों वेदों में इसका एक चैप्टर रहता था कि गृह कैसे चलेगा, घर चलने का नियम प्रणाली कैसा है।
तो उसके ऊपर भी ये था। इस तरह से मैं इसके साथ इसलिए जुड़ा रही हूँ कि कलरीपाइट इटसेल्फ इज ए हेल्थ केयर। आपको अलग से हेल्थ केयर करने की जरूरत नहीं है। इसमें लॉट्स ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक आपके साथ इन्वॉल्व है, फिजिकल प्रैक्टिसेस इसके साथ इन्वॉल्व है, जिसका आपका फिजिकल फिटनेस का तैयारी हो जाता है। तो आपके साथ उसके साथ वर्शिप है। अगर वर्शिप नहीं होगा तो आप बैटलफील्ड में जीत नहीं सकते। अगर वर्शिप नहीं होगा आपको कंसंट्रेशन नहीं बोल सकते। कंसंट्रेशन को इंडियन टर्मिनोलॉजी में देखें तो ध्यान। आप जब बैटल करने के लिए जाते हो, लड़ाई करने जाते हो, आपको ध्यान नहीं होगा। तो ध्यान के लिए फिर आपको मेडिटेशन का चैप्टर आया ना, अलग अलग तरह से मेडिकेशन की रूप आया। सो ये एक ही चीजों के साथ एक ही प्रैक्टिस अपने आप में इतना यूनिक है, इतना भरा हुआ है, इतना कंप्लीट है। तो इस तरह से हमें इस नजर से ट्रेडिशनल फॉर्म को देखना चाहिए। ये सिर्फ एक ट्रेडिशनल फॉर्म जो हम सीख रहे, बस समझते हैं, बस सिर्फ जानना है, इस नजर से देखा ना जाए। Like most Indian martial art, Kalaripayat contains rituals and philosophies inspires Hinduism. ये बोले रिचुअल्स भी है, ये अपने आप ही फिलोसफी है जो मैं थोड़ी देर बाद आपको बोल के आई हूँ। द आर्ट ऑल्सो बेस्ड ऑन द मेडिकल, देखो मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में है, अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्थ फाउंड इन द एंशिएंट इंडियन मेडिकल टेक्स्ट दिस आयुर्वेद। आयुर्वेद की जैसे मैं खुद कलारी का ट्रेनिंग लेने गई थी, सो आम का तेल की मालिश करना, किस तरह से पानी खाना, कौन कौन सा पानी खाना, कब पानी खाना है, कब खाना खाना है, कौन सा खाना खाना है, कब प्रैक्टिस करना था। सुबह सुबह 4 बजे उठा के हमारे गुरुजी लेके जाया करते थे और ऐसे सागर के किनारे हम लोग को ऐसे उसका प्रैक्टिस करता था। उसमें हम रो जाए, मर जाए, पीट जाए, वो कोई गुरुजी का ये नहीं होता था, पूरा भक्ति के साथ जुड़े हुए होते थे। कई बार हम लोग सहन नहीं पाते थे, बहुत कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन गुरु का एक स्ट्रेंथ होता था कि गुरु बोलते थे ये करना है तो हम करते थे। तो गुरु का बात सुनना, और ये कभी अलाउ नहीं करते थे उनका बात नहीं सुनने के लिए। तो ऐसा ऑरा क्रिएट करते थे, ऐसा माहौल क्रिएट करते थे जिसमें वो गुरुकुल प्रक्रिया भी ये सारे फॉर्म्स के साथ हमेशा जुड़ा हुआ होता है। तो कलरीपाइट हो, ठंगटा हो, ये सारे मार्शल आर्ट हमेशा एक गुरुकुल सिस्टम का, गुरु के अंदर ही सीखा जाता है। सो ये जैसे मैं बोल रही हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद की बहुत सारे बातें इसके साथ जुड़े हुए हैं। कलरीपाइट इंडिकेट्स नॉलेज ऑफ प्रेशर पॉइंट्स। प्रेशर पॉइंट होता है जिसके जरिए से आपका हेल्थ केयर होता है, हीलिंग होता है, हीलिंग टेक्निक्स इसके साथ जुड़ा होता है। ये सारे नॉलेज आयुर्वेद से लाके कलरीपाइट के साथ जुड़ा हुआ है। योगा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। योगा का जेस्चर्स बनाना, पोस्टर्स बनाना, उसके साथ ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, हाउ टू टेक ए ब्रीद इन योगा, हाउ टू टेक ए ब्रीद इन व्हाइल यू आर डूइंग कलरीपाइट, हाउ टू do the taking the breathe and concentration and focus while you are preparing for battle fighting। तो ये सारे चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरु शिष्य परंपरा के बारे में इसमें फिर से मेंशन कर रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा के जरिए से ही हम ये फॉर्म सीख सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं। इसमें स्टिक लेके भी फाइटिंग सिखाया जाता है, किक करके भी सिखाया जाता है, ग्रिम्पलिंग करने के लिए सिखाया जाता है, अलग अलग प्रेजेंट फॉर्म्स के साथ सिखाया जाता है, वेपन्स दिया जाता है, हीलिंग मेथोडोलॉजी दिया जाता है। इस तरह से ये अलग अलग स्टेप बाय स्टेप है। ये एक दिन में सिखा नहीं जाता है, 3 महीना में सिखा नहीं जाता है। इट टेक्स 5-10 years to be a master in कलरीपाइट। So these are some forms that अलग अलग मुद्दे को लेके मैंने एक्चुअली प्रिपेयर किया। रामायण को कथा से लिया, भक्ति मोहमेंट से लिया कुछ, फिर देन राम कथा से लिया, और कुछ कलरीपाइट के जरिए से मैंने लिया। उसके साथ साथ ये एक तरह का मेरा आप लोग के लिए प्रेजेंटेशन है। उसके साथ में कुछ और आप लोगों को ऐसे रेफरेंस में बाकी सारे फॉर्म्स के भी मैं आपको कुछ थोड़ा सा ऐसे टिप्स देना चाहती हूँ। बहुत संक्षिप्त में जितना संभव है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने के लिए कोशिश करती हूँ। जो लोग नॉर्थ से रही हैं, साउथ से, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं आज, तो उन लोगों को थोड़ा नॉर्दर्न इंडिया का थिएटर फॉर्म्स के बारे में पता लग जाए। असम के लोगों को, असम से लोग अगर जुड़े हुए तो उसको केरला के बारे में, अलग अलग तमिलनाडु के बारे में, उड़ीसी के बारे में थोड़ा सा पता लग जाए।
Then yeah, Gujarat has a very rich form. There has a Bhavai is a very important form. I'm not mentioning about Bhavai, but Akhayan is then I'm mentioning about this Gujarat. Then Bayalata is that from Karnataka. Then Bhand Pathe, let me talk about this Bhand Pathe from Kashmir. This is this Bhand. They tell, then travel, they narrate, they comedy, they make comedy, they improvise, then they tell the stories, improvise stories वो लोग किया करते थे. भवाई is also again for Gujarat very very important, very very popular form. भवाई को लेके आधुनिक बहुत सारे नाटक लिखा गया है. आधुनिक नाटक भी भवाई फॉर्म में किया जाता है. तो लाइक यू नो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो बा संगीत नाटक अकादमी ने बहुत सारे प्रोडक्शन उन लोगों ने निर्माण किया भवाई फॉर्म को. ये सारे फॉर्म को लेके भी आधुनिक नाटक कैसे क्रिएट करे, और आधुनिक नाटक के जरिए से आधुनिक नाटक में अगर ये सारे फॉर्म रहेगा तो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन इस नाटक के जरिए से हमारे बीच में रह भी जाएगा. देन बोलना चाहती हूँ देन छाऊ के बारे में. छाऊ है जो बिहार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है. उड़ीसा का बेसिकली उड़ीसा का में सब जगह पे उड़ीसा का हर जगह पे है, बहुत बहुत पॉपुलर है. और ये वेस्ट बंगाल का भी पुरुलिया बा इस साइड में भी ये छाऊ का प्रैक्टिस करते हुए देखा जाए. बहुत बड़ा बड़ा मास्क होता है, बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, और ये परंपरागत जो ट्रेडिशनल रूप से उसको सिखाया जाता है. साउदर्न इंडिया में भी बहुत सारे फॉर्म है. वेस्ट बंगाल के जात्रा बोल के एक फॉर्म है. कलरीपाइट केरला के बारे में मैं डिटेल्स बोल के आई हूँ. देन कुडियाट्टम के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ. कुडियाट्टम इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म. लाइक यू नो कुडियाट्टम इज द oldest form of oldest form of theater है. कुडियाट्टम केरला से है. ये एशिया का सबसे पुराना फॉर्म माना जाता है कुडियाट्टम को, और ये टेम्पल केंद्रित परफॉर्मेंस है कुडियाट्टम. और इसमें भी बहुत सारे चीजें जो अभी हम वेस्टर्न चीजों से हम सीखने लगा है आधुनिक प्रक्रिया के लिए बा, ये कंप्लीट है अपने आप पे. उसमें ब्रीदिंग्स के बारे में बहुत सारे टेक्निक है, एक्सप्रेशन के बारे में है, हाउ टू एक्सप्रेस और कितना एक्यूरेट हम एक्सप्रेस कर सके, ये सब चीजों के बारे में बहुत ही रिच है, बहुत ही रिच परंपरा है कुडियाट्टम. देन कथकली इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी भी देश विदेश की लोग आके केरला का कथकली फॉर्म सीखते हैं. और कथकली इज ऑल्सो स्टोरी टेलिंग बोथ रामायण एंड महाभारत. इसमें बहुत ह्यूज मेकअप होता है, प्रॉपर्टीज होता है, और एक आदमी बहुत सारे कैरेक्टर का अभिनय करते हैं. एक ही आदमी कभी राम बनता है, कभी लक्ष्मण बनता है, कभी सीता बनते हैं. उनके बाद अंदर जो अभिनय इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन कथकली. जैसे पांडवानी में कथा गायन शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से हम देखेंगे कथकली में अभिनय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको अभिनय प्रधान शैली को स्टडी करना है तो फिर कथकली आप स्टडी कर सकते हैं, बा आप इस्तेमाल कर सकते हैं कभी अपने टीचिंग में. बा इस तरह से नाट्य संकीर्तन इज मणिपुर. देन नौटंकी दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म दैट इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश. एंड बहुत ही पुराने परंपरा है, बहुत सारे लोग उसके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं. और नौटंकी को बचा के रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके साथ अभी भी कितना सारा फैमिली ट्रेडिशनली कोई भी चीजें ना सोच के अपने परंपरा से इतना प्यार करके अभी भी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. लाइक जो ट्रेडिशनली फैमिली जुड़े हुए थे वो लोग कभी इसको छोड़ नहीं पाया. उड़ीसी दैट इज ऑल्सो अगेन ए टेम्पल बेस्ड फॉर्म फ्रॉम उड़ीसा. बहुत ही खूबसूरत फॉर्म है, बहुत ही खूबसूरत डांस फॉर्म है, जिसके जरिए से ट्रेडिशनल डांस में जैसे जैसे भारतनाट्यम हो गया, सत्रिया हो गया, बा उड़ीसी हो गया, बा इस सारे टेम्पल बेस्ड जो बा प्रेयर से रिलेटेड बा भगवान से रिलेटेड हुए जो फॉर्म्स है, उसमें ये उनका नृत्य का भी हिस्सा है, अभिनय का भी अलग हिस्सा है. और ये उड़ीसी के जरिए से भी अभिनय बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब अभिनय में जैसे इंडियन भारतीय नाट्य शास्त्र में बोला गया है, जैसे अंगिका, बासिका, आहार्य एंड सात्विक, ये चारों तीरों का चीजों का प्रेजेंस ये सारे कथकली हो बा उड़ीसी हो इसमें हमें देखने को मिलता है. उजापाली मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें एक उजा होता है और बहुत सारे पाली होता है. तो उन लोगों ने ये जो मैंने पद्म पुराण की कहानी आपको बोल रही थी, पद्म पुराण जिसमें नाग की कहानी वो लोग इसके जरिए से बोलते हैं, उसका भी दो तरह का हिस्सा है. एक है सुगदानी उजापाली और एक हो गया व्याखर उजा. ठीक है, ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ उजापाली है, बट देन लेकिन उनमें एक उजा होता है जो मेन गायक होता है,
और साथ में बहुत पाली होता है, मीन्स असिस्ट करता है, वो कहानी गायन को आगे बढ़ाता है। ओ दो दो नो, मानो उजा जैसे ऐसे कुछ कहानी बोलता है, फिर कहानी बोला जाए ओ हो ना, इस तरह से कहानी उजा बोलना शुरू करते हैं और साथ में सारे पाली आके उनके साथ जोड़ने लगते हैं। और उसको कहानी बोलने में एक पावर एंड प्रेजेंस, स्टेज प्रेजेंस उनका डेवलप होता जाता है। Then Pandavani we talked about. Then Tamasha is Maharashtra is also very, very important. That is literally very, very important form. And Swang in this Rajasthan is also very important. And then from Tamil Nadu, Tarakuttu, जिसके बारे में मैं थोड़ा रेफरेंस आपको नहीं दिया, कलरीपाइट और जैसे ठंगता, इस दोनों के साथ Tarakuttu is also a kind of martial form, जिसमें काफी martial elements है उसमें. Then it comes Theyam. Theyam is that like the people god. भगवान के अंदर ही जैसे गॉड बनना, उसका एक प्रक्रिया के ऊपर है, ये बहुत आध्यात्मिक है, ये बहुत ही एक मेडिटेटिव प्रक्रिया है. Theyam, that is also from Kerala. Then Yakshagana from Karnataka, that is also a very prominent, very popular. पूरा कर्नाटक में ये कर्नाटक basically this the southern side, not the southern side, like you know this Udupi side, it is very, very famous for this Yakshagana. So, and there are lots of Yakshagana companies still survive, and they talks about this with lots of with Rama Gatha, but then epic based kahani Yakshagana की जरिए से कहा जाता है. कंसा का कहानी, किंग का कहानी, कृष्ण का कहानी. तो मैं अभी ट्राई करूंगी. I might take few minutes to adjust again this video setup. Somebody can help me. God. या अभी ऑडियो मिल रहा है आपको? नहीं मैम. वीडियो मिल रहा है? यस मैम. वीडियो अगर आप कैंसिल कर दो वीडियो. नहीं क्या? वापस राइट क्लिक करो. इसको देते हैं. देन राइट क्लिक. ये तो हाँ. यहाँ पे हाँ. ओपन YouTube. एटलीस्ट आ गया? मिल गया आपको? क्या मिल गया आपको? वीडियो प्ले हो रहा है. ऑडियो नहीं मिल रहा है? नहीं मैम. नो मैम. कहाँ से ऑडियो आएगा? ऑडियो नहीं मिलता है. वेरी सैड. ভিডিও আহিছে, লাগিও ধৰিছে, কিন্তু লাগি ধৰিছে. এটা যাব. ऑडियो कहाँ मिलेगा? मुझे कोई हेल्प करे प्लीज. সাউন্ডত যাব বাইদেউ. সাউন্ডত গৈ কেনে আপুনি ক্লিক কৰিব. মোৰ সাউন্ডত যাও না, কম্পিউটাৰ সাউন্ডত. কম্পিউটাৰ সাউন্ডত এইটো এইটো ন এইটো. Okay, so I could have been like it, like अगर आप सब लोग मेरा आवाज पहुंच रहे हैं आप तक? हेलो, আহিছে বাইদেউ. আহিছে. Okay, thank you. I wish that कि आप लोगों को मैं थोड़ा वीडियो दिखा पाते, थोड़ा टेक्निकली, बिकॉज मैं वीडियो पहले रेडी करके दे नहीं पाया क्योंकि मैं 2 फिल्म मेकर से लिया था. एक है दिल्ली का एक फिल्म मेकर जो नौटंकी के ऊपर उनका एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म से लिया था, तो उनका रिटन परमिशन लेटर नहीं आया था करके मैं उनका वीडियो आपका ऑफिस तक शेयर करके नहीं रख पाए क्योंकि बहुत लेट आके पहुंचा. लास्ट मोमेंट पे उन लोगों ने परमिशन दिया. और एक डॉक्यूमेंट्री ओरिबाम श्याम शर्मा से मैंने लिया था, दैट इज फ्रॉम मणिपुर, जो मैं चाहती थी कि 2 भारत का इंपॉर्टेंट फिल्म मेकर ने ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर का कैसे डॉक्यूमेंटेशन किया, उसका जो वीडियो क्लिप आपको दिखाऊं, लेकिन वो बिना परमिशन का क्योंकि मैं फॉरवर्ड नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं ऑफिस को भी भेज के नहीं रह पाया. ऑफिस को भेज पाता तो शायद वो लोग ज्यादा और खूबसूरत ढंग से प्रेजेंट करता, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर द लेटर्स फॉर देम. बट एनीवे, I hope you got an overall presentation. क्या आपको मिल रहा है वीडियो? नहीं ना?
ऑडियो आ रहा है, ऑडियो আহিছে ভিডিও না আহা এবাৰ অডিও আহিলে ভিডিও নাই আচ্ছা they can hear না You can listen the sound. Can you see the video now? বাইদেউ দেখা পাই আছে বাইদেউ Oh, great, great, great. Yeah, because time is up, I could even love to show you some more videos, but yeah, I think we should end up for this session for today. कभी दोबारा आप लोगों से मुखातिब होंगे तो हम कुछ और बेटर फॉर्मेट में और बेटर प्रिपरेशन के साथ हम लोग और वीडियो दिखा पाएंगे.
बिकॉज ये सारे वीडियोस एकदम से दिखा भी नहीं सकते विदाउट परमिशन, थोड़ा माफी चाहती हूँ। ये जो आप लोगों को अभी देख पाया ये उजापाली है आसाम से, ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है जो मैंने पद्म पुराण का कहानी ये लोग सुनाते हैं। तो ये कथा गायन अभी कॉन्टेम्पोरेरी थिएटर में भी आसाम के बहुत सारे थिएटर प्रैक्टिशनर्स ने इसको लाया है अपने प्रैक्टिसेस में। तो थैंक यू सो मच। क्या पुजारी जी और एनीवन फ्रॉम दिल्ली सेंटर, can you take it like for question answer session or something like that? Yeah, Sandeep ji from headquarters, he can help you in the question answer session if somebody is interested. Sandeep ji, please. सर आप लीड करें काइंडली। हेलो, आप लीड करें सर, लीड करें सर, और टाइम के अकॉर्डिंग फिर हम कंप्लीट कर देते हैं। बिल्कुल सर। Yeah, no, madam is asking for if there is any question from anybody. Yeah, that I am saying you, sir. May please take up. Okay. Hello, participants. If you have any query or anything to be known from our expert, please unmute yourself and put your question. हेलो सर, मैं गुजरात जूनागढ़ से बोल रहा हूँ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है, बोलिए। हेलो, हाँ, नमस्ते रंजीता गोगोई जी। नमस्ते जी। नमस्ते। तो आपने रामायण और महाभारत की बातें अच्छी तरह से सुनाई, लेकिन रामायण और महाभारत में स्त्री समानता की और विमेन इक्वेलिटी की और विमेन एम्पावरमेंट की कोई बात कही गई कि नहीं, उसका आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो फीमेल आर्टिस्ट, जो महिलाएं अभी रंगमंच में काम कर रहे हैं, वी रियली लव, आई एम रियली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। मुझे कई बार लेक्चर देते समय लगा कि सीता की पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण को क्यों कहा ना जाए, क्या कभी द्रौपदी की नजर से एक रामायण की कहानी को क्यों ना बोले, कभी क्यों मंदोदरी की नजर से क्यों ना बोले, और उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी जो सालों तक उनकी प्रतीक्षा में रहे, और उर्मिला की नजर से क्यों ना बोले। लेकिन भारतवर्ष की जो पुरानी परंपरा है वो एक पुरुषतांत्रिक परंपरा ही रहा है। तो ये कहानी इसी तरह से परंपरागत नेचर से, प्रकृति के जरिए से इसी तरह से वो लोग बोले आ रहे थे, जिसमें रावण की पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी आ गया। मुझे लगता है कि वही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं उम्मीद करती हूँ आने वाला समय पे परंपरा ऐसा एक चीज है जो कभी स्टॉप नहीं होती है। जो मैं इससे नदी के साथ कंपेयर करती हूँ, नदी जैसे परंपरा बहते जाते हैं, मानव सभ्यता जब तक रहेगा तब तक हमारे ये परंपरागत थिएटर शैली जिंदा रहेगा, और वो थिएटर जिंदा रहेगा। और कभी ना कभी आप जो उम्मीद कर रहे हैं महिलाओं की दृष्टिकोण से, महिलाओं की क्षमताओं की दृष्टिकोण से, ये सारे रामायण महाभारत, हमारे जो एपिक है पुराण महाभारत, ये सब भी एक दिन ना एक दिन कहा जाएगा। लेकिन जो ट्रेडिशनली कहा जा रहे हैं, जैसे तीजन बाई जब कहानी बोलने लगा पांडवानी की कहानी, तो तीजन बाई ने काफी परिवर्तन लाया पांडवानी शैली में। तो पांडव की कहानी कहने में, उसमें थोड़ा द्रौपदी की जगह बनाने में पांडवानी में तीजन बाई की काफी हाथ है, कंट्रीब्यूशन है। और आने वाला समय पे उम्मीद करती हूँ कि इस तरह सा शैली और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद जी। हाँ मैडम, तुलसीकृत रामायण में कहा गया है कि ढोल पशु गंवार शूद्र और उनारी सब ताड़न के अधिकारी, इसके बारे में कुछ प्रकाश पाड़ेंगे आप? ये आप श्लोक के बारे में बोल रहे हैं, आई थिंक जाति भेद प्रथा के बारे में बोल रहे हैं, शूद्र शैली नहीं, इट इज एग्जैक्टली पशु गंवार शूद्र और उनारी सब ताड़न के अधिकारी, ऐसा लिखा है तुलसीकृत रामायण के। तो उसके बारे में क्या कहने वाले हैं आप? इसका मतलब आपको मालूम है इसका अर्थ, क्योंकि आप तो पूरा अच्छा से संस्कृत श्लोक बोल रहे हैं। तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, एग्जैक्टली तुलसीदास का पूरा रामायण में कहीं एक जगह पे ये श्लोक का रेफरेंस आया हुआ होगा। सो ऐसे बोलना बहुत मुश्किल है एक पार्टिकुलर श्लोक के बारे में। ये सेशन हम लोगों ने जो बना, इट इज नॉट अबाउट ओनली तुलसीदास रामायण, इट इज ऑल अबाउट दिस परंपरा। सो आई एम वेरी सॉरी, आपके सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। सच्ची रामायण भी लिखी गई और रामायण आपने बोला कि कितने लेखक ने लिखी है, लेकिन आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार सच्ची रामायण पढ़ना, जरूर पढ़ना। मैम रविजीता, रविजीता मैम, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। क्वेश्चन उनने जो पुटअप किया वो कंट्रोवर्शियल एक टर्म है जो कि
अवधी में लिखा गया है, ठीक है, वो हिंदी में नहीं लिखा गया है। डियर टीचर्स, गोस्वामी तुलसीदास ने जिस तरीके से रामायण लिखा है, आप हमें सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, सुन पा रहे हैं। मेरे साथ में इसी गुवाहाटी स्टेशन में 130 टीचर थे और हमारे अवध के लगभग 20 टीचर थे उस वक्त में, और हिंदी के उसमें प्रकांड विद्वान, आपके पीजीटीज जिनको आप कहते हैं। तो टीचर्स के बीच में, लोगों के बीच में इस श्लोक को लेके भ्रांतियां थी कि शूद्र गंवा ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो मेरे मित्र हैं जो अवध से बिलोंग करते हैं और उनने कहा सर अवधी भाषा में अगर आप अवध में जाते हैं तो वो ताड़न शब्द नहीं है बल्कि वो तारन है। तारन कि समाज में जिस तरीके से जो भी कमजोर वर्ग होते हैं उनके मोक्ष के लिए सभी की ड्यूटी बनती है, पावरफुल लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाएं। तो गोस्वामी तुलसीदास ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं सर, जो इतना बड़ा प्रकांड रामायण, हाँ, जो लिख सकते हैं रामचरितमानस, वो ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे। तो मैं तो सहमत हूँ, क्योंकि मतांतर है लोगों के बीच में। लेकिन सर मैं सहमत नहीं हूँ। प्रबोधन ठाकर ने ऐसा लिखा है, रामायण और महाभारत कल्पित कथा है। मैं सहमत नहीं हूँ सर, कोई बात नहीं, ये तो इंडिविजुअल। I think this is पुजारी सर, let me complete. थैंक यू सर। ये परसेप्शन की बात है, आप सहमत हो सकते हैं, मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अवध के लोग कहते हैं कि ये तारन शब्द है, मतलब सबको तारना है, सबको मोक्ष की ओर ले जाना है। तुलसीदास ये कहते हैं, उसका मीनिंग ये है। ये मेरा रामायण और महाभारत के लिए लीजेंड ऐसा कहा जा सकता है, तो लीजेंड क्या सच हो सकती है? लीजेंड है वो सच हो सकती है? सर आप सुने, हमारे देश में डाइवर्सिटी इतना है, एक एक स्टोरी की ही 25-25 कहानियां हैं। सेम स्टोरी को हम 20 तरीके से नरेट करते हैं, हर एक सोसाइटी में परसेप्शन बदल जाता है। तो सभी को अभी एड्रेस करना तो संभव नहीं होगा। राम और रावण को लेके साउथ में कुछ और है, नॉर्थ में कुछ और है, ईस्ट में कुछ और है, वेस्ट में कुछ और है। तो इसीलिए हम विवाद के रूप में नहीं जाएं, संवाद के रूप में जाएं और टीचिंग के रूप में जाएं, एजुकेशन के रूप में जाएं। बहुत सारा धन्यवाद, आपने बड़ा जेन्युइन प्रश्न उठाया था, तो उसको आप पॉजिटिव वे में अगर तारन शब्द को भी विचार करें, मेरा निवेदन रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, वी कैन मूव फॉरवर्ड। पुजारी सर, समय के साथ अब मुझे लगता है आपसे रिक्वेस्ट है, वोट ऑफ थैंक्स के साथ हम सेशन को कंप्लीट करें सर। ठीक है, ये ठीक होगा, ठीक है। तो dear teacher participants, our honorable experts, आज के we had a very informative and very interesting session from Madam Robijita. The lecture was superb, but there were some technical problems due to which we are deprived. You are deprived of seeing some good videos of some traditional plays. So next time you may be able to see all these things whenever you come to Guwahati or attend any CCRT program. We will again request you, Robijita Madam, to show all these kind of things. तो आज के लिए यही हमारा सेशन समाप्त होगा। At the end, I thank पुजारी जी, हेलो पुजारी जी, जस्ट दो लाइन में फिर से सिर्फ 2 लाइन। ये हमारे जैसे CCRT हमारे ऐसा एक संस्था है, मैं डायरेक्टली CCRT के साथ जुड़े नहीं हूँ, लेकिन मानसिक रूप में और उनके प्रिंसिपल से उसके साथ में हमेशा जुड़े हुए हूँ। Because CCRT is always giving the importance on the education and then इसको कल्चर को कैसे एजुकेशन पॉलिसी के जरिए से आए। मेरे सामने क्योंकि आज बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, तो मैं उनके लिए एक निवेदन भी है, क्योंकि मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नया आया है, मैं अच्छी तरह से उसको अध्ययन करने के बाद इस नतीजे में पहुंची हूँ। ये एक बहुत ही कंटेम्पररी एंड बहुत ही आधुनिक दृष्टिकोण से लिखी गई है एक पॉलिसी है। इसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स को काफी इम्पोर्टेंस दिया गया है। सारे टीचर्स ये जो फोक फॉर्म है,
ये सारे फोक फॉर्म के एलिमेंट्स को लेके अपने कथा गायन शैली बा नृत्य शैली बा नाटक की शैली के जरिए से एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इससे भारतीय एजुकेशन सिस्टम में एक नयापन आएगा, एक नवीनत्व आएगा और साथ में एक पूरे दुनिया को हम एक दिशा दिखाने के लिए समर्थवान होंगे कि इतना रिच ट्रेडिशन के जरिए से हम फिर से जुड़ जाएंगे, ताकि सिर्फ वो क्लासरूम स्टडी होके ना रहे, ये एक साथ में संस्कार संस्कृति को भी पढ़ने लिखने के जरिए से भी आगे बढ़ने का एक परंपरा रहेगा. सो माय deep request to all the teachers, with due respect to Sandeep ji and Pujari ji, I think I'm not making a mistake, so this is my hardcore request to all of you. Thank you Pujari ji, Sandeep ji. Sandeep, just a few words on Madam Robizita's suggestion, just a few words from you. आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही है पुजारी सर, कुछ disturbances हैं. I request you present just a few words on Robizita Madam's request. Okay, from CCRT's point of view. Actually, dear teachers, before intervening this program on theatre, we had a meeting with Madam Robizita and the all resource persons, and we saved actually in with guideline of Honorable Chairperson, we saved this lecture, how to come up with learning outcome, and Robizita ma'am has addressed accordingly. Ma'am, thank you so much. And at last you addressed and connected with the NEP is very important for us. Really CCRT's mandate and wish is also the same, which you said at the last to message sent to the teachers. Same request from the CCRT, you please inculcate our Indian culture in the classroom as per the guideline of NEP, which ma'am is also saying you. Thank you being with us, Robizita ma'am. Whenever you come to us in CCRT, we feel overwhelmed. Your content, your materials from the theatre, as you are from NSD, all components is coming from that stream, I can understand. So thank you so much being with us, and we are grateful to you for your such knowledgeable presentation. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. From all of us at CCRT, we are very indebted for your extremely erudite session. I think your session was thought-provoking, and it gave a lot of areas where teachers can look at that how drama is an art form of human emotion and expression. And I do appeal to all our teachers that let us use these very, very ancient forms which were so true to learning. यहाँ mugging नहीं है, memorizing नहीं है, एक बच्चे के complete soul तक जाने वाली बातें हैं, and that is what drama was. I was waiting to see the video, ma'am. Please do send us the link. I have seen Tijan Bai performing live, and I know it is an absolutely electrifying presence. She changes the entire environment. आपको जोश आता है, आपके रोंगटे खड़े होते हैं, and you feel like getting up and getting into action. That is the power of drama and expression. And I must share it, dear teachers. I have used drama therapy with a lot of children. When children are going through abuse, I have seen a lot of children from victimized scenarios, children in shelter home and orphanages. I have used drama therapy to help these children accept life skills. So let us use today's learning in our classrooms to inculcate life skills which have been emphasized in national education policy. So thank you, ma'am. Once again, आपको बहुत-बहुत हमारा अभिनंदन, pranam for sharing your profound knowledge with all our teachers. We all meet tomorrow morning again at 9:50. Till then, let us keep thinking new ways of making classroom teaching integrated with culture, art, heritage of our rich Indian tradition. Thank you. Take care of yourself. We will all meet tomorrow. Tomorrow is the last day of this training. It's also a valedictory session where you will be able to hear our honorary chairperson, ma'am, her message, and our director, sir.
So thank you, teachers. All the best. Thank you, madam. Thank you, madam. Here we end up today's program. I once again thank all the teacher participant, expert, and CCRT officials. It is the end of the program. We'll meet tomorrow. Thank you.